So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. Welcome back to our YouTube channel, Proper Pariksha. So till now we have discussed and completed all the exercises and concepts related to chapter 4, starting from chapter 1. And now we will be starting chapter 5. So just giving you a brief summary of what the topics will be discussed in chapter 5 and how we will proceed further. So in the first part, we'll do the measurement, the methods of measurement and positioning error, which is also known as parallax. In the part 2, we'll be doing exercise 5.1. In the next part, we'll be covering topics such as types of angles, right angles, straight angles, complete angles, acute angles, etc. and including obtuse angle and reflex angle. And also we'll be covering the topic of RA tester, which is also known as right angle tester. In the next part, in the part 4 and part 5, we'll be dealing with exercise 5.2 and exercise 5.3. And the next part, we'll be starting the topic of quadrants and the measurement of angles. How do we measure angles in real life? And in the next part, we'll be dealing exercise 5.4 and 5.5 in two separate parts. And further, we'll be starting the concepts of classification of triangles based on sides as well as based on the angles. So based on sides, it can be classified such as equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. And on the basis of angles, it can be categorized as acute angle, right angle triangle and obtuse angle. In the next part, we'll be dealing with exercise 5.6, and lastly, we'll be dealing with types of quadrilaterals such as rectangle, square, parallelogram, etc., including trapezium. And in the same video, we'll be dealing with types of polygons, starting from triangles and ending at hexagon or furthermore, as per the NCERT book describes. And the last part, in the second last part, we'll be dealing with exercise 5.7 and 5.8 in two separate parts. And lastly, we'll be covering the summary or what have we discussed so that we can summarize the whole chapter. So let us begin. So now, starting with chapter 5, part 1. तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है. It is important because everything and everywhere we use the concept of measurement. Either we measure the lines or we measure the angles, we measure the roads, we measure the architecture, buildings, etc. तो हर चीज मेजर होती है, यहाँ तक कि आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस प्रोजेक्ट में भी आपको स्पेसिफाई होता है कि आपको A4 साइज की शीट इस्तेमाल करनी है. तो A4 साइज की शीट भी एक मेजरमेंट के हिसाब से ही कैटेगराइजेशन है. There are also various types of sheets, A3 sheets, A2 sheets. तो मेजरमेंट हर जगह है, इसीलिए we need to understand the importance and we need to understand the methods of measurement. तो both the things, importance, अगर किसी चीज की importance होगी तभी उसके लिए आप आगे खोज करेंगे, उसके आगे चीजें काम करी जाएगी, लोग काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो फिर पता चलेगा कि उस चीज को मेजर कैसे करना है, हमें मेथड्स पता चलेंगे किस किस तरह से मेजर किए जाते हैं. तो below I have mentioned the three majorly used methods which are used in order to measure the line segment. First is observation. Observation क्या होता है कि आप when someone is well experienced और जब उस चीज का उसे अच्छा खासा अनुभव हो जाता है तो अगर उसके सामने कोई एक चीज है, वो कोई भी चीज हो सकती है, अगर कोई इंसान मैकेनिकल का है तो उसके सामने एक बोल्ट हो सकता है, या सिविल का है तो उसके सामने एक टाइल्स हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो उसके सामने कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है. तो हर चीज का कोई ना कोई मेजर है. खैर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इस तरह के मेजर्स तो है नहीं जो विजिबल हो, क्योंकि वोल्ट और एम्पियर होते हैं तो वो इनटैंजिबल है. लेकिन मैकेनिकल, सिविल और बाकी रोजमर्रा की चीजें में, डेली लाइफ के यूजेज में आपको इस तरह की चीजें काम आती हैं. तो वो ऑब्जर्वेशन से ही बता देंगे कि ये कितना बड़ा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 2.5 सेंटीमीटर. तो दिस इज बाई ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन वाला मेथड इज नथिंग बट यूजिंग द एक्सपीरियंस, यूजिंग द प्रायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. दूसरा मेथड क्या होता है इज द मेथड ऑफ ट्रेसिंग. ट्रेसिंग मतलब जैसे कि ये सेम लाइन मैंने किसी को दे दिया, उस सेम लाइन को वो एक ट्रेसिंग पेपर लेगा
और उस पर ट्रेस कर लेगा। ट्रेस करने के बाद उस चीज को उसके पास जो भी एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है उसके बगल में वो रखेगा और उस चीज से मेजर करेगा। तो इससे उसे क्या पता चल रहा है दैट दिस लाइन इज 2/3 ऑफ हिज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, या फिर 2/3 ऑफ दिस लाइन L2। L1 लाइन जो है वो L2 का 2/3 है। तो दिस इज द मेथड बाय ट्रेसिंग। या फिर अगर उसके पास रूलर है तो वो रूलर से भी मेजर कर सकता है। यहाँ पे उसने रूलर रख दिया ट्रेसिंग करके ट्रेसिंग पेपर के ऊपर और उसने मेजर कर लिया, भाई ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। The third method and the most modern method of measuring anything, of measuring any line segment, is using a ruler and a divider. तो यही हमारा मेथड होगा फॉर द होल चैप्टर एंड इन द फॉर एनी ऑफ द फर्दर चैप्टर्स या फर्दर क्लासेस आप रूलर और डिवाइडर के मेथड से ही किसी भी चीज को मेजर करेंगे। ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप लोग इस चीज को देख लें कि रूलर से मेजर करना क्या होता है कि हमने जो लाइन दी गई थी अगर वो लाइन फिक्स्ड है कहीं से उठा नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज है जो फिक्स है उसे आप वहां ना रूलर ले जा सकते हैं ना उस चीज को रूलर के पास ला सकते हैं। तो यू जस्ट टेक अ ट्रेसिंग पेपर, आप उस पर ट्रेस करेंगे और रूलर के बगल में रख देंगे, तो उसको हम लोग कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर कहते हैं। और डिवाइडर में क्या हो जाएगा कि जो चीज हमें मेजर करनी है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे हम लोग डिवाइडर रख देंगे इस तरह से और उसको फिर एज इट इज रूलर के पास लेके जाएंगे और उस पर रख देंगे, तो उससे हमें मेजर हो जाएगा कि ये कितने सेंटीमीटर का या कितने इंचेस का है। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो भी आपको बताते हैं। डिफरेंस ये रहता है कि व्हेन वी लुक एट द स्केल वी कैन लुक एट एनी ऑफ द थ्री एंगल्स। वी कैन लुक आइदर डायरेक्टली एट द पॉइंट वेयर इट इज बीइंग मेजर्ड, जैसे कि अगर कोई लाइन है और यहाँ पे रूलर रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे इसकी एंड पॉइंट आ रही है और ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो या तो आप इसके जस्ट लेवल पे रहेंगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि रूलर आपके नीचे पड़ा हुआ है, मतलब आपके नीचे की तरफ है, तो आपको नजरें झुका के देखनी पड़ रही है। तो आप या तो इस तरह से देखेंगे या दूसरा तरीका क्या हो सकता है दैट रूलर इज टू फार फ्रॉम योर एंड और आपको आंखें आगे की तरफ करके देखनी पड़ रही है। इन तीनों में आपको मेजरमेंट अलग अलग मिलेगा। द एग्जैक्ट मेजरमेंट विच विल बी ऑब्जर्व विल बी व्हेन यू हैव द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट एंड व्हेन यू हैव द आईज और द विजन और द एनी विजनरी ऑब्जेक्ट जो एकदम कोइंसाइडिंग हो at top of the measuring point. If the measuring point and your eyes are either below or above the measuring point, then it will lead to positioning error, जिसको हम लोग पैरेलैक्स भी कहते हैं। ठीक है, मैंने उसकी स्पेलिंग लिख दी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है ये चीज आपको हो सकता है 2 डायमेंशनल लाइन मेजर करने में उतना असर ना करे, लेकिन ये चीज आपको असर करती है कब, जब आप कोई फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रिक लिया, ठीक है, और उस ब्रिक को आपने रख दिया रूलर के अगेंस्ट। सो नाउ इफ यू विल बी लुकिंग एट द ब्रिक फ्रॉम बिलो द मेजरिंग पॉइंट, then you will measure something which is like this। ठीक है, मैं मैक्सिमाइज करके दिखा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि 2.5 जो है आप 1.5 पढ़ लें, 2.5 जो है आपका 2.4 हो जाएगा या 2.3 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फार यू आर फ्रॉम द ब्रिक एंड हाउ बिलो यू आर फ्रॉम द मेजरिंग पॉइंट। ये दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट करके ही ये पैरेलैक्स एरर पे डिपेंड करता है। हाउ फार यू आर वो ये वाली लाइन हो जाएगी एंड हाउ बिलो यू आर फ्रॉम द मेजरिंग पॉइंट, दिस विल लीड टू द पैरेलैक्स एरर। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही ज्यादा दूर हैं और बहुत ही ज्यादा नीचे हैं तो हो सकता है कि 2.5 1.5 दिखने लगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यू आर अबव द मेजरिंग पॉइंट, उस केस में क्या हो जाएगा आप कुछ इस तरह से देखने लगेंगे, तो आपका मेजरिंग जो है वो ये हो जाएगा।
So rather than 2.5, you will get the measurement of 2.6 or 2.7. This is not a dividing line, this is the or symbol, the slash symbol. Okay? Now, when you are exactly on top of the measuring point, then you will get the exact measure of the object, 2D object or 3D object, whichever you are using to measure. ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जैक्ट मेजर आपको मिलेगा. इस वजह से हमें पैरेलैक्स एरर का ध्यान रखना होता है. जैसे मैं एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, तो हमें किसका यहाँ इस चीज की दिक्कत कहाँ पे आती थी? व्हेन वी यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, दो तरह के लिक्विड होते हैं. लिक्विड या तो इस तरह से अपना सरफेस बनाता है. अब ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये आप लोग बहुत आगे चल के सीखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है. बस ये समझ लीजिए कि दो तरह के लिक्विड्स होते हैं. एक लिक्विड वो होता है जो आप टेस्ट ट्यूब में अगर डालेंगे तो वो इस तरह का बनाएगा अपना लेयर, और दूसरा होता है जो इस तरह का बनाएगा. जनरली वी गेट टू सी अ लिक्विड लाइक दिस, बट अगर मर्क्यूरी होता है तो उसमें इस तरह का लेयर भी मिलता है. ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से. अगर मैं इसको टेस्ट ट्यूब को मैं बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ हूं और मेरी हाइट यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है आई विल हैव टू टिल्ट माय हेड इन ऑर्डर टू सी द मेजरमेंट इन द टेस्ट ट्यूब. तो मेरा जो मेजरमेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 5 ml रख रखा था, तो मैं 4.8 ml ही पढ़ पाऊंगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर टेस्ट ट्यूब मैंने शेल्फ पे रख रखा है, ठीक है, मैंने टेस्ट ट्यूब को शेल्फ पे रख रखा है और मैं उसको मेजर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे जो मेजरमेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, और यहाँ पे मैं पढ़ लूंगा कि 5.2 ml हो गया. तो इन एनी ऑफ द केस 4.8 या 5.2 वो आपका दिक्कत देगा, आपको एरर आएगा उसकी वजह से अपने प्रैक्टिकल में. और जब आप एकदम बराबर से देखेंगे देन यू विल गेट टू नो कि आपका एग्जैक्ट लेवल क्या है. So these were some of the examples which I used. I used the example of a 2D object, which is a line. I used the example of a 3D object, which is a brick. I also used a more practical example, such as using a test tube and liquid. तो इस तरह की चीजें होती हैं. पैरालैक्स होता है. The definition of parallax is mentioned over here. To get the correct measure, the eye should be correctly positioned, just vertically above the mark, or you can say exactly above the measuring point. Otherwise errors can happen due to angular viewing. ठीक है, उसका एक फिजिकल प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, आप चाहें तो इस चीज को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. तो ये हमारा था मेजरमेंट से रिलेटेड वाला पार्ट. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डीलिंग विथ एक्सरसाइज 5.1, और इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि 5 आपका पोजीशनिंग एरर क्या होता है, टॉप से देखने पे क्या असर पड़ेगा, बिलो से देखने पे क्या असर पड़ेगा, व्हाट आर द 3 मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर एनी ऑब्जेक्ट 2D और 3D, और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मेजरमेंट, और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एलिमेंट्री शेप्स. ठीक, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस भी हैं वो इसी तरह के रहेंगे कि मतलब आपका थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे हमने देख रखा, यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना. और फिर आप यहाँ पे अगर देखेंगे ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन, तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई एज अ क्वांटिफाइड क्वेश्चन नहीं है. एक क्वेश्चन ये आएगा आपका क्वांटिफाई वाला, वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो इसलिए इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.1. So keep supporting our channel, keep revising your concepts, and keep liking our videos. So till the next time we meet, goodbye.